السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناولس۔ ناول قافلے راہ بھول جاتے ہیں خون بہا ونی بیس ناول ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایپیسوڈ 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اربیہا کدھر ہو بھائی؟ وہ جھرٹا مارنے میں مگن تھی، یکدم چونکی۔ جی لالا، اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور تیزی سے باہر بھاگی۔ طویل راہداری عبور کرتے ہی اسے منصور مل گیا۔ کدھر ہے سب؟ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ اچھا پھر کھانا لگاؤ، پیسے لائے ہیں، مجھے آواز دے دینا۔ وہ حکم جاری کرتا واپس مڑ گیا۔ اربیہا طویل سانس لیتی کچن کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانا لگایا اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب آ کر ہلکے سے پکاری، لالا میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، منصور کی بھاری آواز ابھری۔ وہ شکر ادا کرتی واپس آ گئی، مگر پڑھنے کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ BA میں نیا ایڈمیشن لیا تھا، اگرچہ کالج ان کے علاقے سے پون گھنٹے کے ڈرائیو پر تھا، پر اس کے مزید پڑھنے پر ملک ہاؤس میں کوئی اتنا خاص آمادہ بھی نہیں تھا۔ مگر بلا وہ منصور لالا کا جو سب کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ اس نے طویل سانس لے کر کتابیں بند کی، رائٹنگ ٹیبل سیٹ کی، الماری سے اپنے شب خوابی کا لباس نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے بالوں میں برش کیا اور لائٹ آف کرنے کے لیے آگے بڑھی، اور پھر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی نظر داہنی دیوار پر لگی اس پینٹنگ پر ٹھہر سی گئی۔ اس تصویر میں منظر کشی بہت عجیب سی تھی، ماحول کس قدر پراسرار اور ایک بے نام سا خوف۔ اربیہا کی نظر جب اس پر پڑتی وہ ایک سرد لہر سی خود میں دوڑتی محسوس کرتی۔ اسے یاد تھا کہ جب گھر کو نئی سرے سے سیٹ کیا گیا تھا تو یہ پینٹنگ کہیں سے تحفہ آئی تھی۔ شومئی قسمت کہ وہ اربیہا کے کمرے میں سجا دی گئی۔ تصویر میں وسیع اور صحرا دکھایا گیا تھا، جس پر کالی سیاہ رات نے اپنا بسیرا کر رکھا تھا۔ چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا اور چاندنی میں صحرا کی ریت چمک رہی تھی۔ چمکتی ہوئی اس ریت کے میدان کے عین وسط میں گھڑ سوار تھا، جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا رہا تھا۔ گھوڑے کے اگلے پیر اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ گھڑ سوار کا لباس بھی سیاہ تھا اور مزداد اس نے اپنے چہرہ بھی سیاہ ڈاٹے سے ڈھکا ہوا تھا، جبکہ تصویر کی کشش اور خوف میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ بہت مدھم سے الفاظ میں نیچے درج تھا، گوئنگ ٹو ریونج۔ اس وقت بھی وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو کر لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی۔ پتہ نہیں وہ گھڑ سوار کون سا بدلہ لینے کے لیے جا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ سیاہ تار کھول کے سڑک پر برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی BMW نے اپنا رخ کچی سڑک کی طرف موڑا تو ٹائر ایک لمحے کو زور سے چرچرائے، پھر انجن گھرایا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ شام کا دھندلکا ہر سو چھا رہا تھا۔ کچے راستے دوریاں لگے بڑے بڑے سفیدے اور شیشم کی طرح خاموش اور ساکت کھڑے تھے۔ ماحول اس وقت صرف پرندوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ سائے لمبے ہوتے ہوئے بتدریج سمٹ رہے تھے۔ آخرکار گاڑی سرخ و سیاہ امتزاج سے مزین ماربل سے بنی حویلی کے سامنے رک گئی۔ چوکیداروں نے تیزی سے گیٹ کے پٹوا کیے۔ گاڑی سیاہ بجری کی روش پر چلتے ہوئے پورٹیکو کی طرف بڑھ گئی۔ نثار نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سلام شاہ سائیں، اس نے ادب سے سلام کیا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر اجرک اوڑھے شاہ فضل نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کے قدم تیزی سے مردان خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نثار کے قدم اس کو ساتھ دینے کی کوشش میں ہانپ رہے تھے۔ حویلی میں سب خیریت ہے؟ اس نے اپنے مخصوص باروب اور غنیدار لہجے میں پوچھا۔ جی سائیں، سب خیریت ہے۔ شاہ فیصل کدھر ہے؟ اس نے اپنا اگلا سوال داغا۔ نثار ایک لمحے کو گڑبڑایا۔ وہ سائیں اپنے دوست ملک سے ملنے گئے ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شاہ فضل کے برق رفتار قدم تھم گئے، اس کی پیشانی پر ایک شکن آ کے تھم گئی۔ اسے میرے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ جی سائیں۔ نثار نے نظریں جھکا لیں۔ میرا پیغام دیا تھا؟ جی سائیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے طویل سانس لے کر قدم زنان خانے کی طرف موڑ دیے۔ نثار جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتا واپس مڑ گیا۔ بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ شاہ فیصل کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں سائیں، کدھر ہو؟ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے حویلی میں۔ پتہ چلا تمہارے لیے اپنے ویر سے ہم سجن ہیں، اس لیے ایک ماہ بعد ملنے کی بےتابی صرف اپنے متروں سے تھی، ہم سے نہیں۔ اس کے تحکم بھرے لہجے میں طنز کی آمیزی صاف نظر آتی تھی۔ نہ سائیں، اب کیا فائدہ، ثبوت تو تم نے دے دیا کہ تمہارے لیے کون اہم ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں اہم پر زور دیا۔ ہم سب سمجھتے ہیں رشتوں اور دوستوں کا مقام۔ تم ہمیں مت سکھاؤ، تم حویلی آ جاؤ، باقی بات پھر کریں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی چمکدار سی آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ اس کے بارہا سر درج کرنے کے باوجود بھی شاہ فیصل اور منصور ملک کی دوستی بڑھتی گئی تھی۔
मलिक ख़ानदान से इनके ताल्लुकात कुछ ख़ास बेहतर न थे, मगर कोई दुश्मनी भी नहीं थी, महज एक लाताल्लुकी थी जो बुरी तरह दोनों ख़ानदानों के दरमियान हायल थी। शाह फैसल और मंसूर मलिक की दोस्ती की बढ़ती हुई दोस्ती में अगरचे किसी को कोई नुकसान नजर न आता था, मगर शाह फैसल की बात रद्द करने की हिम्मत किसमें थी? इसने साफ लफ्ज़ों में शाह फैसल का मंसूर मलिक से ताल्लुकात ख़त्म करने को कहा था, मगर शाह फैसल ने सरीहनी से नज़रअंदाज करके अपने हक अदली की सज़ा को गोया मज़ीद सख्त कर दिया था। बीबी जान के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इसके जबड़े भींचे हुए थे और होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त थे। था हद नज़र पहले माल्टे और सेब के बागात के दरमियान कच्चे रास्ते पर तेजी से दौड़ती घोड़ा गाड़ी में से एक जीनत छलांग लगाकर बाहर निकला, इधर उधर देखा और सीधा माल्टे के दरख्तों के झुंड में घुसता चला गया। उसके हसीना अंदाज से इसे यहाँ का रिहायशी जाहिर करते थे। वो दरख्त के दरमियान जगह बनाता तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह रुक कर चौकन्ना अंदाज में चारों तरफ देखा, जेब में से किसी चीज़ की मौजूदगी का यकीन किया और अपने लिए मुनासिब मोर्चे तलाश करने लगा। कुछ देर बाद इसकी निगाहें कतरे नीचे को झुकी और पहले वह दरख्त पर जाकर रुक गई। इसे यकीन था कि वह दोनों यहीं आएंगे। इसने अपनी पोजीशन सेट की और काफी नगाह से चारों तरफ का जायजा लिया, फिर अपने कान कच्चे रास्ते की तरफ लगा दिया जहाँ से जीप की आवाज़ करीब आती महसूस हो रही थी। यूं आवाज़ आती जा रही थी, इसके असाब मज़ीद तने जा रहे थे, दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई सी लग रही थी और आखिरकार वह जीप इसके करीब से गुजर कर कदरे आगे जाकर तिरछी हुई और फिर रुक गई। मंसूर यार, किधर हो तुम? शाहसाई, मैं अपने गेट पर पलके बिछाए आपका मुंतज़िर हूँ, मंसूर ने चुपते हुए लहजे में तंज किया। जवाबन फैसल ने एक बुलंद बांग कहका लगाया, फिक्र मत करो बाबा, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बल्कि जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। हम अपनी रियाया की सदा खाली नहीं जाने देते बाबा। फैसल ने हंसी रोकते हुए खालिस वडेरे के अंदाज में कहा, मेहरबानी सही, आप तशबीर का टोकरा ले ही आए, वरना। मंसूर ने धमकाते हुए फ़ोन बंद किया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो दोनों का आज शाम शिकार का प्रोग्राम था। फैसल को इसे पिक करना था, जब भी मंसूर पिछले आधे घंटे से इसका इंतज़ार कर रहा, मगर फैसल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कई बार तो इसका दिल चाहा कि वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाए, फिर कुछ सोच कर रुक गया। इसी कश्मकश के दौरान फैसल की कॉल आ गई। कुछ देर बाद गेट पर जीप की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। फैसल दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर चुका था। मंसूर पढ़कर इससे बगलगीर हो गया, फिर मुस्कुराते हुए पीछे हटा। खैरियत, आज बड़ी खुशबुएं हट रही हैं जनाब से। कुछ नहीं यार, ऐसे ही दिल चाहा था, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, दिल चाहे फिर कभी भी चाह सकता है और कुछ भी चाह सकता है। अब चले, मंसूर ने कहा। दोनों जीप की तरफ बढ़ गए। इनकी जीप तेजी से कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती सेब और माल्टों के दरख्तों को चीरती आगे बढ़ रही थी। अभी न जाने क्या हुआ, जीप एक झटके से रुक गई। फैसल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, भी दरवाज़ा खोलकर दोनों नीचे उतर आए। फैसल जेब का बोनट खोल कर देखने लगा, तभी गोली चलने की आवाज़ पर मंसूर ने चौंक कर देखा। इर्द-गिर्द कोई नजर नहीं आया तो इसने अपना रूसी साख्ता ब्रेटर निकाल लिया और फायर किया, लेकिन गोली नहीं चली। मुझे लगता है इसके ट्राई करने का मसला है, मंसूर ने रिवाल्वर को देखते हुए कहा। अभी चेक कर लेते हैं। फैसल इसके हाथ से रिवाल्वर लेकर देखने लगा। अब इसे चला कर देखो। मंसूर ने आसमान की तरफ इसका रुख करके ट्राई कर दबाया, मगर बेसुध। मंसूर रिवाल्वर को देख रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिजा एकदम फायर से गूंज उठी, आवाज़ से गूंजी। फैसल के जिस्म को एक झटका सा लगा, इसके सीने से खून का फव्वारा सा फूटा था। मंसूर ने बेयकीनी से इसे देखा। रिवाल्वर इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फैसल का वजूद लरज़ा, फिर पूरी कुव्वत से कच्चे में जा गिरा और साकत हो गया। इसका जानदार वजूद पल दो पल में खाक का ढेर में मिल चुका था। दरख्तों पर फड़फड़ाते परिंदे जोर शोर से चीख रहे थे। मंसूर फटी फटी निगाहों से फैसल को देख रहा था, जिसके साकत आंखों में हैरत गोया जम कर रह गई थी। खौफ ने पूरी शिद्दत से इस पर हमला किया। मैंने नहीं मारा। वो पलट कर पूरी ताकत और वहशत से भागा था। सेब और माल्टों के दरख्त के ऐन वसत में खड़ी जीप और इसके साथ पड़ी फैसल चाह की लाश के बिल्कुल साथ वह रिवाल्वर गिरा पड़ा था, जिस पर मंसूर की उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। फिजा पर माल्टों की खुशबू के साथ एक बू भी फैल रही थी, और वो थी मौत की बू, जो कि फैसल के खुशबूदार वजूद से उठ रही थी। शाह महमूद के दो बेटे थे, शाह फजल और शाह फैसल। इनका शुमार गांव के वडेरों में किया जाता था। शाह महमूद पंचायत के पंच थे और अपने इंसाफ पसंदी की बिना पर पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। इनकी अपनी ज़मीनें और बागात थे। लाहौर में 3 फैक्ट्री चल रही थी। शाह फजल ने एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया था। इसकी ज़ात की सबसे नुमायां शनाख्त थी इसका गरूर। चलता तो यूं जैसे सल्तनत पता कर लेगा, बोलता है तो यूं जैसे इसके सामने इसकी हकीर तरीन रियाया खड़ी हो।
देखता तो यूं जैसे आंखों से रूह खींच लेगा। इसकी शख्सियत को अगर 2 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता तो शायद यही था, मुजस्समे गरूर। इसका गुस्सा इतना सख्त और तेज़ था कि बाज़ दफ़ा तो शाह महमूद भी घबरा जाते थे। इसके बाद शाह फैसल था, MBA पार्ट 1 का स्टूडेंट, भलाकर शरीर, बुज़दिल सेंच और जिंदा दिल। अक्कर तो जैसे से छू कर नहीं गुजरी थी, सही मायनों में वो शाह फजल का ही उलट था। फिरोज़ मलिक का शुमार भी इलाके के बाज़ार शख्सियात में किया जाता था, मगर वो गाँव के अंदरूनी मामलात से हमेशा लाताल्लुक़ और बेखबर रहे थे। इनके 2 ही बच्चे थे, मंसूर मलिक और अरबिया मलिक। मंसूर इनके साथ लाहौर वाली फैक्ट्री में होता था, जबकि अरबिया ने BA में नया एडमिशन लिया था। 19 साला अरबिया में जैसे मंसूर की जान थी, वो बहन से बेतहाशा प्यार करता था। उसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि उसने सबसे बाकायदा टक्कर लेकर उसे आगे एडमिशन दिलवाया था। घर में कोई राज़ी न था, इनकी फैमिली में लड़कियों को इतना आगे बढ़ाने का रिवाज ही नहीं था, मगर मंसूर सबके आगे डट गया था और यूं इस वक्त वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पूरे इलाके में एक तूफान छाया हुआ था और वो था शाह फैसल की मौत का तूफान, जिसने हवेली की बुनियादें हिला डाली थी। शाह फैसल तभी पूरा शहर बना हुआ था। इसका बस चलता तो मंसूर मलिक समेत इसके पूरे खानदान को आग लगा डालता, मगर ये शाह महमूद की कुव्वत बर्दाश्त थी, जिसने अभी तक इसके ज़ब्त पैमाना लबरेज होने न दिया था। आज शाह फैसल की मौत को 3रा दिन था। पंचायत बैठ चुकी थी, तमाम सबूत और गवाहियाँ मंसूर मलिक के खिलाफ थीं। यकीनन वो सज़ा का मुस्तहिक ठहर था, मगर तब जब वो मौजूद होता, वो इसी दिन इसी वक्त फरार हो चुका था। ताहाल इसका नामो निशान नहीं मिला था। शाह फजल के आदमी कुत्तों के मानद हर तरफ इसकी पूंछ सूंघते फिर रहे थे, मगर वह हनूज़ लापता था। एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि लाजमन में इलाका गैर की तरफ निकल गया था। हवेली के मर्दान खाने में भी इस वक्त गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई थी। तमाम सरकर्दा अफराद मौजूद थे। हवेली पंचायत का फैसला सुनाया जा चुका था। ये नामुमकिन है बाबा साईं, शाह फजल की धाड़ गूंजी थी। खून को ठंडा रखो साईं, ये फैसला हो चुका है और याद रखो ऐसे कितने मामलात के फैसले हमने भी ऐसे ही सुनाए थे। बाबा साईं का लहजा पुरसुकून था। आपको मतलब है मैं अपने भाई के खून की कीमत ले लूँ, बेगैरत बन जाऊँ? वह पागल होने को था, दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर है। तुम फिरोज़ मलिक की बेटी से निकाह कर लो। इसके चचा शाहपुर खान ने कहा, देखो फजल बेटा, मुझे फरार हो चुका, इसलिए फैसला यही किया गया कि खून बहा की रकम या लड़की आ गई तो मुनासिब समझो। इस बार इसे समझाने वाले मामू फराज थे। मेरे फैसल का खून इतना आसान नहीं कि मैं इसकी कीमत दूँ। वो घुराया था, इसकी आंखों में पहली सुर्खी, इसकी रजगों और गजब की घमास थी। हाँ, लड़की पर समझौता हो सकता है, वो लब पीछे बोला। सब ने एक नामालूम सी तस्कीन भरी सांस ली। ताहम अब एक नई बहस छिड़ चुकी थी। दूसरी तरफ मलिक हाउस पर भी एक क़यामत टूटी हुई थी। फिरोज़ मलिक के कंधे झुके हुए थे। वो पंचायत का फैसला सुनकर आ गए थे, मगर जाने क्यों इन्हें यकीन था कि वो रकम का मुतालबा हरगिज़ नहीं करेंगे। वो शाह महमूद के खानदान को जानते थे। इनकी गैरत का तकाजा यही था कि वो रकम कतल कबूल न करें। वैसे भी इनके पास दौलत की कमी न थी। जैसे हैं फिरोज़ मलिक दूसरी तरफ सोचते, इनके दिल की नाजुक रगें टूटने लगती, क्योंकि इस तरफ इनकी इकलौती नाजुक वाली बेटी अरबिया थी। मलिक हाउस में दाखिल होकर उन्होंने किस हौसले से सबको पंचायत का फैसला सुनाया था, मगर फिर जैसे जब्त की हद खत्म हो गई थी, वो ढह से गए और फज़ाने मलिक तो जैसे साकत सी हो चुकी थी। मेरी बच्ची का क्या कसूर है? मलिक साहब वो रोते हुए पूछ रहे थे। फिरोज़ ना चाहते हुए भी नज़र चुरा गया। अगली सुबह इनकी शकूक सही साबित हो गए थे। हवेली से फैसला आ चुका था। इसी शाम अरबिया मलिक को शाह फजल के निकाह में दे दिया गया था। अरबिया ने छोटे से बैग में अपने 4 जोड़े रखे। एक साकत और सबसे बड़ी निगाह अपनी किताबों पर डाले थे, जिनमें से कुछ पर तो इसने अभी तक अपना नाम तक न लिखा था। फिर इसकी नज़र दीवार पर लगी इस तस्वीर पर इसने इसे दीवार से उतार और अपने बैग में रख लिया था। रुखसत करते वक्त इसकी माँ ने कहा था कि वो समझ ले कि इसने अपनी ज़िंदगी भाई के पसंद का कर दी। आज इसे हवेली में आए दूसरा दिन था। इसने अभी तक शाह फजल को नहीं देखा था। आज मुलाजमीन की पूर्ति और हवेली में होने वाली हलचल बता रही थी कि वो वापस आ रहा है। हवेली में सब करवाई इसके साथ अच्छा नहीं था तो बहुत बुरा भी नहीं था। बीबी जान ने इससे मुख्तसर सी बात की थी और कमरे में जाने को कहा था। दोपहर के खाने के बाद जब शाम की तैयारियां होने लगी तो वो खामोशी से बीबी जान के पास आ बैठी, जो ज़ेरे लब तस्वीर पर कुछ पढ़ रही थी। फजल पहुंच चुका है, उन्होंने उसे बताया। एक नामालूम सर्द लहर इसके अंदर दौड़ गई। पता नहीं वो कितना गुस्सैल और तनख्वाह था। शायद इतना जितना इसने सबसे सुना था, या शायद इससे भी ज़्यादा। वो जान गई थी कि वो शाह फैसल से बहुत प्यार करता था, जान छिड़कता था इस पर। और अब वो क्या करेगा इसके साथ? तुम किचन में जाकर देखो, खाना तैयार है।
बीबी जान ने इसे इसके सोचों से निकाला। वो सर झटक कर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। सब इंतजाम देखकर वापस आते हुए यकदम रुक सी गई। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। बीबी जान की आवाज़ के साथ एक मर्दाना आवाज़ यकीनन शाह फजल की थी, भारी, बाराब और पुरतासर। अरबिया को अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ। वो तेजी से वापस मुड़ गई, भागते हुए अपने कमरे की तरफ आकर इसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर मुलाजिमा इसे खाना देने आई, मगर इसने इनकार कर दिया। इसके भूख, प्यास, यकदम ख़त्म हो चुकी थी। शाम के ताल में रात के सिक्के गिरने लगे, आवाज़ें बतदरीज मद्धम होती गईं और रोशनी गुल। जब हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर वो उछल पड़ दरवाज़ा खोला तो नुसरत खड़ी थी। छोटी बेबी, आपको शाहसाई ने बुलाया है। अरबिया ने हरास होकर इसकी शक्ल देखी। कौन से शाहसाई? अरबिया ने थूक निकलते पूछा। नुसरत ने हैरान होकर इसे देखा। फजल साई ने। बीबी ने तस्दीक की। अरबिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ बुलाया है? इसने बेसाख्ता पूछा। अपने कमरे में आए, मैं आपको छोड़ आऊं। अरबिया ने लरजते हाथों के साथ बमुश्किल अपनी गर्म शाल को अपने गिर्द लपेटा था और इसके साथ चल पड़ी। फिर एक मनकश दरवाजे के सामने रुक गई। साईं, मैं छोटी बीबी के साथ हूँ, आ जाओ। इसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। नुसरत ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अरबिया इसके पीछे थी। कमरा क्या था? पूरा शीश महल था। इतना खूबसूरत, इतना वेल फर्निश्ड। अरबिया दंग थी। कोई खिदमत साईं? नुसरत ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, इसने हुक्म दिया। नुसरत खामोशी से मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अरबिया बमुश्किल लरजती टांगों का बोझ संभाले नजरें ज़मीन पर गाड़े खड़ी थी। इसे लग रहा था कि वो भी गिर जाएगी। सुर्ख शनील के लिहाफ में नीम दराज में बड़े सुकून से इसके चेहरे के उड़ते हुए रंगों का मुलाहिजा कर रहा था। स्याह गर्म शाल और सुर्ख प्लेन लीलन के सूट में इसकी रंगत दमक रही थी। इसकी घूरसी आंखों में वहशत और खौफ था। चेहरे से वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। शाह फजल की झनकों से इसको तकसीन पहुंची थी। इसकी नज़र अरबिया के सरापे में जम कर रह गई थी और नज़रों की तपिश से वो कुछ और जर्द हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी सर्द आवाज़ गूंजी। अरबिया। वो मुश्किल हल्क से आवाज़ निकाल कर बोली। क्या करती हो? अगला सवाल हुआ। अरबिया को लगा वो किसी तफ्तीशी अफसर के सामने खड़ी हो। पढ़ती हूँ, इसने कहा। फिर यकदम अपने गलत जवाब को इदराक हुआ। पढ़ती थी, इसने फौरन कहा। शाह फजल ने कतरे दिलचस्पी से इसे देखा। क्या पढ़ती थी? बीए में एडमिशन लिया था। इसने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी। हल्क में जैसे कांटे से उगाए थे। कब? 1 माह पहले। इसकी टांगें थक चुकी थीं। इसका दिल चाहा काश वो वहाँ से भाग सकती। माँ बाप तो तुम्हारे बड़े खुदगर्ज निकले, बेटे के बदले तुम्हें पेश कर दिया, उसने हकारत से कहा। अरबिया के सीने में अन्नी सी गड़ गई। उसका दिल चाहा दाड़े मार कर रोए। इस बात का तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश खड़ी आंसू पीने की कोशिश करती रही। जहाँ आओ, उसने हुक्म दिया। अरबिया के कदमों से ज़मीन सरकी थी। इसने बेख्तियार सर उठाकर देखा। वो इसके सामने था, अपनी पूरी शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ। स्याह शलवार सूट में, आस्तीने कहने तक मोड़े, टांगों पर लिहाफ डाले, चमकता सी आँखें और खड़ी नाक, घनी मूंछों तले अनाबिला पींछे हुए थे। इसकी आंखों ने जैसे इसे हिप्नोटाइज कर दिया था। वो किसी ट्रांस की इसी कैफियत में चलती बैठ की तरह बढ़ने लगी। इतना तो तुम जानती हो कि खून बहाव में आने वाली औरतों को क्या हैसियत दी जाती है? इसने सफाकी से कहा। जी नहीं, उसने हिम्मत करके कहा। जान जाओगी? वो हल्की से ऐसा था। मुझे नहीं पता बीबी जान ने तुम्हें इस हवेली में क्या हैसियत दी है, मगर यहाँ तुम्हारी हैसियत वो होगी जो मैं मुतय्यन करूँगा। वो रौनक से बोला। अरबिया का सांस जैसे सीने में ही अटक गया। इसका साथ इसने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। कमरे में तारीकी छा गई। बिल्कुल इसकी किस्मत की तरह अंधेरा बढ़ने लगा। चादर उतर गई, दबाव बढ़ता जा रहा था। अरबिया का जी चाह रहा था वो जोर जोर से रोए, माँ को पुकारे। उसकी घुटी घुटी सिसकियाँ, दबी दबी चीखें शाह फजल को कितनी तस्कीन पहुँचा रही थी वो नहीं जानती थी। वो वहशी था और इसकी वहशत और बर्बरियत सहते सहते वो अधमोई सी हो रही थी। वो इस इतनी गंदी ज़बान बोल रहा था कि अरबिया का दिल चाहा काश वो अपने कान बंद कर सकती। रोते गिड़गिड़ाते हुए इसने कितनी बार इससे रहम की भीख मांगी थी। रहम, शाहसाई, रहम। वो मर रही थी। जवाबन उल्टे हाथ का भरपूर तमांचा इसके गाल पर पड़ा था। अरबिया ने अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस किया था। तेरे भाई ने किया था। वो घुर्राया था, बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की मानत। वो चीख उठी थी कि बात अब बर्दाश्त और ज़ब्त की हद से निकल चुकी थी। और इसकी हज़ानी चीखें सुनकर जैसे और भी दरिद्री पर उतर आया था। दर्द की आखिरी हद को छूते हुए इसने कब आवाज़ गवाही से कहा। न हो, आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर। किसका गम कहाँ तक है, शिद्दत कहाँ तक है। कुछ अजीज़ लोगों से पूछना तो पड़ता है, आजकल मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक है। इसकी आँख पता नहीं कौन से एहसास से खुली थी। चद्दर में बेहिस हरकत छत को घूरती रही। फिर आवाज़ बेदार होते ही इसे बेपनाह घुटन का एहसास हुआ था। इसने अपनी की नज़र दौड़ाई। वो इसके पास ही तो था, यूं कि वो इसके दाएं बाजू और दाएं टांग के नीचे दबी हुई थी। इसकी सांस मजीद रुकने लगी। यकदम रात के मनाजिर इसके जहन के पर्दे पर लहराए। खौफ की एक सर्द लहर इसके पसीने में नहला गई। या अल्लाह, मैं जिंदा हूँ,
अभी तक क्यों हूँ मैं ज़िंदा? क्या मैं इतनी हकारत, इतनी ज़िल्लत सहने का हौसला था मुझ में? क्या मेरे असाब इतने मजबूत हैं? या फिर वो सब जिस शख्स ने मेरे साथ किया है कैसे सह लिया मैंने? वो सब गालियाँ जिसने मुझे दी हैं कैसे सुन ली मैंने? मैं मर क्यों न गई? इतनी वहशत, ऐसी दरिंदगी कैसे झेल गई मैं? क्या मैं इतनी हौसलामंद हूँ? मैं हैरान थी, बेहद हैरान। इतनी तज़हीर और ऐसी बेबसी, इतनी सफाकी और जुनून। इसे अपने गेंद लिपटे इसका बाजू किसी नाव की मांद लगा था। इसका सर दर्द से फट रहा था। हर आंसू में भर जाने वाली अज़ियत इसकी रग जा को तोड़ रही थी। कितने बेवजह आंसू इसके गालों से बहते बालों में जज़ब हो रहे थे। सच कहा था शाह फजल ने, हैसियत का तयन हकीकतन हो चुका था कि हैसियत दी गई थी इसे। शाह फजल ने एक रात में अमलन अपने रवैये से समझा दिया था। मेरे बाहर जंगल था और मेरे अंदर आग। आग निकालो सब जल जाए, आग छिपा लो खुद जल जाओ। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगी आपको एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी न्यू एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।